Hello everyone, welcome to my YouTube channel Good Luck Introduction of English Language. As you all know that we always bring a new and interesting topic to help you in English learning and also clear your confusion. Like always, today we have a new topic that is from prepositions, but here we are only just going to talk about two important prepositions which always create a confusion, that is since and from. So in this video you are going to learn differences and examples so that you can clear the concept of using preposition since and from. So let's get started. So first I would like to tell you the differences between since and from. As you can see on the screen, the Hindi meaning of since and from are similar, that is say. But there are some differences. Since indicates an unfinished action, means an action which is not ended. But in case of from, it usually indicates a finished action. Second, since is not usually followed by any other preposition. Means if you have used since in your any sentence, then you don't need to use any other preposition with since. But in case of from, it is followed by a preposition that marks the end of the action. Means from always talk about the starting of one point, but by using any other preposition you can end the action. Third, since can only be used with perfect continuous tense, whereas from can be used with any tense. Fourth, since refers to an action which has continued up to now, means any action which started in past but still it is continue till now. But in case of from, it also refers to action in future, means it is talking about all the action in present and past, but also it indicates an action which is from future. So let's see the first example of since and from, which creates a bit confusion. So here I have example. I have been living in Delhi since childhood, means I started living in Delhi since childhood and it is still continue, means still I live in Delhi. And second example is I have lived in Delhi from childhood till I turned 18, means मैं दिल्ली में रह रहा था जब तक मैं 18 साल का नहीं हो गया. तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि मैंने from के साथ एक और भी यहाँ पे preposition यूज करी है till, जो हमारे एक्शन को एंड कर रहा है. दोनों ही केसेस में मैंने चाइल्डहुड का यूज किया है, बट पहले वाले एग्जाम्पल में सिंस चाइल्डहुड का जो हमने यूज किया, इसका मतलब ये है कि मैं बचपन से अभी तक दिल्ली में रहता आ रहा हूं. और दूसरे वाले में हमने जो बात करी है कि दिल्ली में मैं रहता था तब तक जब तक मैं 18 साल का नहीं हो गया, उसके बाद मैं दिल्ली से कहीं और चला गया. तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है हमारा. आगे हम और एग्जांपल्स देखेंगे. सबसे पहले हम यहां पे देखने जा रहे हैं प्रॉपर यूज ऑफ प्रेपोजिशन फ्रॉम. अब फ्रॉम का जो मीनिंग होता है, कहां कहां यूज होता है. सबसे पहले हमारे यहां पर जो फ्रॉम यूज किया जाएगा, फ्रॉम सम प्लेस, यानी किसी जगह से. अगर आप किसी जगह से आ रहे हैं तो हमेशा आप वहां पे फ्रॉम का यूज करेंगे. एग्जांपल्स लेते हैं. ही इज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, यानी वो स्कूल से आ रहा है. नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम फ्रॉम दिल्ली, यानी मैं दिल्ली से हूं, यानी मैं दिल्ली का रहने वाला हूं. नेक्स्ट, दे विल कम फ्रॉम अमेरिका, यानी वो अमेरिका से आएंगे. फोर्थ, शी लिव्स फार फ्रॉम माई हाउस, वो मेरे घर से दूर रहती है. तो इन सभी एग्जाम्पल्स में हमने जो बात करी है वो किसी जगह से होने की बात करी है, इसीलिए हमने यहां पर हर जगह अपने फ्रॉम preposition का यूज किया है. नेक्स्ट है हमारे यहां पर फ्रॉम का यूज सेकंड कहां पर किया जाएगा, जब हम किसी भी मतलब एक पर्टिकुलर टाइम, डेट या डे की बात करेंगे, यानी किसी समय, तारीख या दिन से अगर हमारा कोई तालमेल होता है या कोई हमारी बात होती है उसके लिए. अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पे जो लिखा हुआ है टाइम इंडिकेट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये इसमें जो हमारा टाइम इंडिकेट करेगा वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है, लेकिन ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह कभी यूज नहीं किया जाएगा. वहां पर हमेशा आपका सिंस ही लगेगा. एग्जांपल्स देखते हैं हम यहां पर. आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, यानी मैं कल से काम करूंगा. अब यहां पर ये जो हमने बात करी है ये हमारे फ्यूचर टेंस की बात हमने करी है. नेक्स्ट एग्जांपल है, शी वर्क्स हियर फ्रॉम 10 AM to 5 PM, यानी वो यहां पर काम करती है 10 बजे सुबह से लेके शाम को 5 बजे तक. नेक्स्ट है, दे विल कंटिन्यू देयर क्लास फ्रॉम मंडे, वो अपनी क्लास मंडे से शुरू करेंगे, यानी कंटिन्यू करेंगे. अब यहां पर हमने जो मंडे का यूज किया है ये हमारा क्या हो गया, एक हमने ये हमारे डे से हो गया, हमारा दिन हो गया ये.
तारीख पे हम कोई तारीख भी ले सकते हैं और समय तो हम ले ही रहे हैं इसमें। रवि विल नॉट लिव इन दिस सिटी फ्रॉम 15 अगस्त। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा यूज क्या होता है फ्रॉम का। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं जब फ्रॉम हमें किसी सोर्स से मिलता है, यानी किसी भी एक स्रोत से मिलता है, तो वहां पर हमेशा हम फ्रॉम का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पर वी गेट सनलाइट फ्रॉम द सन, यानी अब हमें जो रोशनी मिलती है वो किससे मिलती है? सूरज से। तो सूरज क्या है? हमारा एक सोर्स है, उससे हमें सनलाइट मिलती है। नेक्स्ट है हमारा ही रेड दिस स्टोरी फ्रॉम अ बुक, उसने ये कहानी एक किताब से पढ़ी है। तो यहाँ पे जो सोर्स है वो कहानी पढ़ने का क्या है? वो एक बुक है। नेक्स्ट है यू कैन गेट योर फोन फिक्स्ड फ्रॉम एनी मोबाइल शॉप, आप किसी भी मोबाइल शॉप से अपने फोन को ठीक करवा सकते हैं। नेक्स्ट आई हर्ड इट फ्रॉम राम, मैंने ये राम से सुना है। तो मेरे सुनने का जो सोर्स है वो राम है। इस तरीके से हमने फ्रॉम का यूज किया है। अब हम यहां पे देखने जा रहे हैं प्रॉपर यूज ऑफ प्रेपोजिशन सिंस का। सिंस के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं यहां पर। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दूं कि सिंस का हमेशा यूज होता है जब आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, यानी कोई भी एक निश्चित समय। सिंस रिप्रेजेंट्स एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, यानी सिंस के केस में कोई भी एक्शन पास्ट से शुरू हुआ था और वो अभी तक कंटिन्यू आपका चल रहा है। सिंस हमारा कहाँ यूज होता है उसको हम देख लेते हैं अब। जैसे सिंस 2010, 2010 से, सिंस मंडे यानी मंडे से, सिंस नाइट सिंस आफ्टरनून रात से या दोपहर से, सिंस जनवरी से, सिंस चाइल्डहुड यानी बचपन से या सिंस बर्थ जन्म से ही, सिंस दैट डे उस दिन से, सिंस आई वॉज बॉर्न यानी जिस दिन से मैं पैदा हुआ, जब से मैं पैदा हुआ हूं। सिंस इज मोस्टली यूज्ड इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सिंस का सबसे जो इस्तेमाल किया जाता है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर ही किया जाता है। और ऊपर दिए हुए जितने भी टाइमिंग्स हैं ये सभी के सभी फिक्स्ड हैं, चाहे उसमें हमारा ईयर हो, चाहे मंथ नेम हो, चाहे हमारा वीक डे हो, या कोई भी पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, सारा का सारा हमारा एक फिक्स टाइमिंग है, पॉइंट ऑफ टाइम है, एक्यूरेट टाइम। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं सिंस के, उनको हम देखते हैं। He has been living here since 2010, यानी वो यहाँ 2010 से रह रहा है, यानी अभी भी वो रह ही रहा है। 2010 से तो उसने शुरू किया था रहना और अभी तक भी वो रह ही रहा है। I have been teaching since 2006, यानी मैं 2006 से पढ़ा रहा हूं। ये दोनों ही सेंटेंसेस मेरे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हैं। अगला है She had been cooking since morning, वो सुबह से खाना बना रही थी। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है हमारा। ममता हैड नॉट बीन अटेंडिंग इंग्लिश क्लास सिंस मार्च, यानी ममता इंग्लिश क्लास पिछले मार्च से अटेंड नहीं कर रही थी। ये भी मेरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है पास्ट का। नेक्स्ट है यहाँ पर दे विल हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस 10 o'clock, वो 10 बजे से खेत में काम कर रहे होंगे। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया है। ही इज ब्लाइंड सिंस हिज बर्थ, वो अपने जन्म से ही अंधा है। शी हैज बिन टेकिंग केयर ऑफ हर ब्रदर सिंस चाइल्डहुड, यानी बचपन से ही वो अपने भाई की देखभाल कर रही है। इन सभी एग्जाम्पल्स के अंदर हमने सिंस का यूज किया है और सिंस हमेशा ही एक पर्टिकुलर टाइम की बात करता है, जैसा कि आपको पहले बताया भी गया है और यहाँ पर एग्जाम्पल्स में दिखाया भी गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में दिए हुए बेल आइकन को हिट कर दिए ताकि आपको इसी तरह के इंग्लिश वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आती रहें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।